Hello students. So we continue with cash flow statement. This is lesson number 6 on cash flow statement, and we are now taking up next important activity in preparing cash flow statement, and that is the cash flow from investing activities. We have already discussed calculation of cash flow from operating activities, and the next one today is cash flow from investing activities. As compared to operating activities, this part is very small, but there are just one or two important things which you must try to understand the concept behind that. What are those two important things? In investing activities, investing activities include purchase of fixed assets or investments. This is an outflow. This is one. Second is sale of fixed assets or investments. Now, when you purchase a fixed asset, if in the purchase of fixed asset you pay some brokerage to some broker, then this purchase price will be including brokerage. If you have bought a fixed asset for 2 lakhs and you have paid 2,000 rupees as brokerage, so the purchase price will be 2,02,000, including brokerage. Paying brokerage on the purchase of an asset is an investing activity. Similarly here, when you sell a fixed asset, my dear student, there may be loss or there may be gain on sale. Now this loss or gain is automatically included in the sale price. If the sale price is 5 lakhs, this is including gain, because if you have sold something at 5 lakhs, what was its cost? Its cost was 480. Something costing 480 has been sold for 5 lakhs, and if you take sale as 5 lakh, this includes 20,000 rupee gain. Similarly, when you take the sale price, if there is a loss, that sale price will be inclusive of or exclusive of loss. You understand that? So you don't have to write sale and loss, sale and gain separately. Only write the selling price, inflow of the fixed asset or of the investments that includes loss or gain on sale. So this is one, two, and number three. Number three in investing activities is interest received, it may be dividend received, or it may be rent received. Rent received is also an investing activity. It may be an operating activity for a property dealer. Similarly, interest received is an investing activity, but it may be an operating activity for a finance company. Similarly, dividend received, it is an investing item here. So these interest received, dividend received, and rent received, these are the items which will be taken up in investing activities. Very good. So now these items, purchase price of a fixed asset, sale of a price of a fixed asset, interest received,
they generally are given to you. If they are given to you, then the preparation of this part B, it is part B of the statement, cash flow statement. It's pretty simple. You have simply add and less, because purchase is an outflow, this is minus, sale is an inflow, this is plus. Similarly, interest received is inflow, this is inflow, this is, write all these items and then total and work is done. But my dear students, sometimes the examiner puts some ticklish issues in it, some difficult issues. What are those? They are some of these items. This may be missing. This is not given to you. Purchase price is not given or sale price is not given. They are the missing items. And we have to calculate the missing items. Now I explain to you how to find out the missing items in case of fixed assets or investments. Now I take investments. You are given opening and closing figures. This is an investment case, please. So you prepare an investment account. This is investment account, right? This is investment account. And in this investment account, you are given the opening balance. Say these are 40,000. And here is closing balance. This is, say it is 2,50,000. Now this is 40,000 opening, closing is 50,000. अब ये 40 का 250 कैसे हो गया? Automatically, if you deduct this out of this gives you 2,10,000. This is to cash. This is the purchase price. This is the purchase price. This is cost of. ये cost है इन्वेस्टमेंट की, तो ये मिसिंग फिगर आ गई. इसके साथ आपने यहाँ पर छोटा सा लिख देना है बैलेंसिंग फिगर. ये बैलेंसिंग फिगर है और इसके साथ भी लिख दो ये क्या है, ये परचेज प्राइस है. इस तरह से मिसिंग फिगर्स निकाल लेते हैं. ठीक है. और इसमें से और देखिए, अब सपोजिंग इसमें से हमने ये सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी और आधी इन्वेस्टमेंट बेच दी. ठीक है. अब इनमें से आधी इन्वेस्टमेंट बेच दी, कितना बनता है आधा इनका, कितना बनता है आधा 40,000 का? दिस इज 20,000. 20,000 की इन्वेस्टमेंट्स 10% प्रॉफिट पर बेच दी. 20,000 की इन्वेस्टमेंट 10% प्रॉफिट. देखो तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट हो, अगर इस पर 10% प्रॉफिट अगर लगाएं तो ये 2,000 का बनता है. तो आपने कितने की बेची? 22,000 की. तो यहाँ पर लिख दीजिए आप बाई कैश सेल कितने की? 22,000 की. Now my dear student, listen, I told you just about 5 minutes before, this is the sale price. इसमें हमारा प्रॉफिट मिला हुआ है, गेन 22,000 गेन इज इंक्लूडेड इन दिस. अलग से नहीं लिखना, इधर ये लिखा हुआ है, इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी. लेकिन जब हमारे पास ये इंक्लूडेड है तो हमें इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी. सो अब आपके पास ये हो गया 22,000. इसमें गेन कितना है? तो गेन इधर लिख दो आप. गेन है 2,000 का. इसमें इंक्लूड है, इसमें अलग से नहीं लिखना है, इधर ये ऑलरेडी है, ये इधर आएगा गेन. और अब आपके ये देखो प्राइस कितनी आती है, ये चेंज हो जाएगी ना, कि ये टोटल कितना हो गया? 2,72,000. ये हो गया 2,72,000. 2,72,000.
इसमें देखिए तो अब 42,000 इसमें से घटाइए 2,30,000, 2,30,000 हमारी क्या आ गई, ये आ गई परसेंट। इस तरह से ये बैलेंसिंग फिगर, ये गेन हमारे पास पता है कि इसमें गेन मिला हुआ है। ओके, सो इस तरह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और मिसिंग फिगर जो है वो ये फाइंड आउट करेंगे। ये कौन सी मिसिंग फिगर है? दिस इज परचेज प्राइस। ओके, अब देखिए एक फिक्स्ड सेट, कोई मशीन, अगर मशीन आपने कोई खरीदी बेची है तो हम फिक्स्ड सेट या फिक्स्ड सेट अकाउंट बनाएंगे या मशीन अकाउंट, कुछ भी हो, फिक्स्ड सेट है, ये फिक्स्ड सेट है हमारे पास। ठीक, this is fixed set count and I am given the balance। उसी तरह से बैलेंस BD मेरे पास गिवन है 4 लाख का, और इधर भी बैलेंस क्लोजिंग भी गिवन है, ये है 8 लाख का। अब 4 से 8 कैसे हो गया? इसका मतलब इधर 4 और खरीदी है, मिसिंग फिगर आ गई आपकी। आप लिखोगे टू कैश परचेज आ गई। अब मान लो इसमें से एक मशीन बेची है, एक मशीन बेची है। अब फिक्स्ड सेट में एक और नई चीज आएगी जो इन्वेस्टमेंट में नहीं आती, फिक्स्ड सेट में आती है डेप्रिसिएशन। क्यों? जब भी कोई चीज बेची जाती है तो खरीदने वाला देखता है कि इसकी पोजीशन क्या है, ये तो इस डेप्रिशिएट हो चुकी है, ये नई नहीं है। तो जब भी आपने कोई चीज़ बेचनी है, सपोज फिक्स्ड सेट हमने एक बेचा, ये गिवन है आपको कि एक मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन 20,000, ये गिवन होगी। सोल्ड फॉर 60,000, सोल्ड फॉर 50,000, ये 3 बातें आपको गिवन होंगी। मशीन 80,000 की थी और जब से चल रही है तब से आज तक भी उसकी 20,000 डेप्रिसिएशन हो गई। तो बाकी कितने की बची आज की डेट में? कम ऑन, कितने की बची? यस, 80 माइनस 20, कितने की बची? 60। 60 वाली चीज कितने में बिकी? 50 में। तो इसमें लॉस आ गया। तो अब हमने जब ये बेचनी है, इधर लिखना है बाई कैश, कितने की बेची है ये? 50,000। दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ लॉस। ओके, और यहां पर लिखना है इसको बेचने में हमारा लॉस कितना हुआ? लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल हुआ हमारे पास 60 का 50 में बेचा तो कितने का हुआ? 10,000 का लॉस हो गया। इतने की बेची, इतना का लॉस हो गया हमारे पास। ओके, और डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, ये कितने की थी हमारी? 20,000 की। डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन। अब देखो हमारी यहाँ, इसको हम कहते थे पहले 4 लाख की मशीन आई, अब देखो कितने की आती है मशीन। इन सब का टोटल करें, हमारे पास आता है 8,80,000। इधर भी लिखे 8,80,000, 8,80,000। तो अब देखो इसमें से ये घटाएं तो हमारे पास बचता है 4,80,000। ये आ गई परचेज प्राइस। दिस इज टू कैश, और टू कैश का मतलब पेमेंट करी हमने, टू कैश, ये आउटफ्लो हो गई। दिस इज आउटफ्लो, और ये है बैलेंसिंग फिगर।
बैलेंसिंग फिगर, और ये है परचेज प्राइस। दिस इज परचेज प्राइस। ओके, तो ये हमारा अकाउंट बन गया है। इसमें आपके पास दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ये सब कुछ कितने का बिका ये गिवन, और हमारे पास कॉस्टिंग 80,000 ये भी गिवन थी हमारे पास। इस पर 20 की डेप्रिसिएशन लगी और 5 की वजह 10 का। ये देखिए इन तीनों का टोटल हमारा 80 बन गया। तो 80 की मशीन निकल गई। डेबिट होता है कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। इधर से 80 की मशीन देखो निकल गई है एक, इसमें से 80 की मशीन निकल गई। गॉट इट? दिस इज डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल। और अगर आपको यहां पर एक डेप्रिसिएशन और दी हुई है, अगर दी हुई है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है तो इधर वो भी लिख दो आप। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, मान लीजिए 1 लाख ये है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 1 लाख, तो अब आपका टोटल हो जाएगा 9,80,000 और इधर आ जाएगा 9,80,000 और ये मशीन अब बन जाएगी आपकी 5,80,000। तो ये अकाउंट बनाना जो है ये बहुत ज़रूरी है। इस अकाउंट के साथ यू कैन फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स। ये गिवन था, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, सब कुछ गिवन है, एक चीज़ मिसिंग होगी। तो एक अकाउंट बनाना सीख लो, इसको नोट कर लो आप इसी तरह से, और इसकी खाली जगह भरते जाओ, मिसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी। और लास्ट चीज़ आज बताएंगे आपको, वो फिर फिक्स्ड सेट्स के बाद है। ये थी फिक्स्ड सेट, और ये जो है ये हमारी पुरानी फिगर है पिछले साल की, और ये डेप्रिशिएटेड फिगर है। दिस इज डेप्रिशिएटेड फिगर, ये भी डेप्रिशिएटेड है, इसमें ये डेप्रिसिएशन निकल चुकी है, और ये जो बेची है ये भी डेप्रिसिएशन के बाद बेची है हमने। सो ऑल दीज फिगर्स, these are depreciated figures। अब एक सिस्टम कंपनीज अडॉप्ट करते हैं, वो होता है जब फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पे रखे जाते हैं। जब हम फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पे रखते हैं तो क्या करते हैं, तो देखिए जब फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पे हो तो क्या करना है। ये है फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और इसमें ब्रैकेट में लिख लो मोटा करके कॉस्ट। ये कॉस्ट है। इसमें देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास मान लीजिए 6 लाख है, ये कॉस्ट है, इसमें डेप्रिशिएट नहीं है। पहले केस में डेप्रिशिएटेड फिगर थी, और इधर बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये है 11 लाख, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, इनमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, राइट। अगर हमारा बैलेंस ओपनिंग इतना है और क्लोजिंग इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा। देखो इधर आ गया टू कैश, कितना आ गया टू कैश, नई मशीन खरीदी कितने की, 5 लाख की। ये मिसिंग फिगर आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई, मिसिंग फिगर, ऐसे निकाल लेना है। लेकिन इसके साथ जब कभी सेल गिवन है आपको, तो आपको एक और डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है, वो है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो आपने 11th में किया होगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो अलग से बनाया जाता है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट में लिखते हैं मशीन लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन। ये एक मेथड होता है।
दूसरा जो कंपनीज करती हैं वो सारे एसेट कॉस्ट पे लिखती हैं और उनकी डेप्रिसिएशन और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन वो अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखते हैं। उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, या उसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको लायबिलिटी साइड में भी लिखा जाता है। प्रोविजन है तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास दो प्रोविजन होती हैं, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो हमारे पास ये प्रोविजन आ जाती है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसमें भी आपको ये बैलेंस गिवन हो गए बाय बैलेंस BD। ये है हमारे पास प्रोविजन अकाउंट। मान लीजिए हमारे पास इसमें यहाँ का बैलेंस है 60,000, इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है 6 लाख, डेप्रिसिएशन है 60 लाख। इसका मतलब है जो 6 लाख की चीज़ खरीदी हुई हमने उस पर आज तक डेप्रिसिएशन 60,000 की हो चुकी है, और इसमें क्लोजिंग बैलेंस भी होगा आपको, टू बैलेंस कैरिड डाउन। मान लीजिए ये है 1,10,000, ऐसे। अब देखिए ये तो 60 की थी, 1,10 कैसे हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारे साल में और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करी है। डेप्रिसिएशन साल के शुरू में तो ये थी पिछले साल की, तो अब हमारी हो गई 1,10,000 टोटल डेप्रिसिएशन। ये किस पर है? ये क्लोजिंग बैलेंस पर है। क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 11 लाख और इस पर डेप्रिसिएशन होगी 1,10,000। अगर हम बैलेंस शीट में वैसे लिखें जैसे आप लिखते आए हैं पहले 11th क्लास में, तो हम लिखेंगे मशीन 11 लाख की माइनस डेप्रिसिएशन 1,10,000। लेकिन कंपनीज ऐसे नहीं करती। कंपनी मशीन तो लिखेंगी 11 की, क्योंकि कॉस्ट लिखते हैं। जब कॉस्ट लिखते हैं तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लिखेंगे इतने। इसकी डेप्रिसिएशन ये है, इसकी डेप्रिसिएशन ये है। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये भी इसका ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है। अब हमारे पास सारे साल में डेप्रिसिएशन कितनी लगी? ये आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी डेप्रिसिएशन गई? 50,000। 50,000 और ये देखो 1,10,000 का बन गया। ये मिसिंग फिगर थी, ये हमारे पास आ गई मिसिंग फिगर। अब इसमें एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने मशीन बेची, फिर इसमें लिखो कौन सी मशीन बेची? कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन 20,000, 30,000 लगा लेते हैं। डेप्रिसिएशन 30,000, सोल्ड फॉर 35,000। ये तीन चीज़ें आपको गिवन हैं। कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन 30,000 और सोल्ड फॉर 35,000। अब हमने देखना है इधर कि ये फिगर ओपनिंग है, दिस इज बिफोर सेल, सेल से पहले की, और ये है क्लोजिंग, ये है सेल के बाद की। हमने इधर बेचनी है पहले बाय कैश, ये हमने सेल करी, कितने की करी है? सोल्ड फॉर 35,000। 35,000 इतने की बेची हमने। और कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी उसकी 80,000। ये है कॉस्ट। इसमें से हमने 80 की मशीन निकाल ली। कितने की? 80 की। उस पर डेप्रिसिएशन कितनी है? वो डेप्रिसिएशन तो सारी इधर पड़ी हुई है। ये है हमारी ये मशीन, ये है बिफोर सेल। द मशीन विच वी आर सेलिंग is included in this. I repeat, the machine which we are selling is included in this, and the depreciation on that machine which we are selling is included in this. जो भी मशीन बेच रहे हैं वो इसमें मिली हुई है, और उस मशीन पर जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें मिली हुई है। इसलिए वो मशीन की डेप्रिसिएशन इसमें से निकालते हैं। इसको फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ले जाओ। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, नीचे लिखो डेप्रिसिएशन
ऑन मशीन सोल्ड कितने की है? 30,000 की। इसमें से हमने निकाल ली, या 20,000 की या 10,000 की कोई भी डेप्रिसिएशन है तो वो डेप्रिसिएशन इधर लिख दिया हमने। ये कहाँ से आई है? डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड में से, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। अब आप देखो आपके पास लॉस कितना आया। 80,000 की चीज़ कितने की है? 80,000 की। 30 की डेप्रिसिएशन हो गई, बाकी बची 50 की, और 35 में बेच दी, और लॉस कितना आया? 15,000 का। ये 15,000 का इधर लॉस लिख दो, दैट्स ऑल। ये इसे समझ लीजिए, ये बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। इधर देखिए, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इधर आपने ये डालने हैं, लॉस इधर आ गया। अब जब ये डाल दिया इधर, अब देखो इसका टोटल जो है कितना बना? ये बन गया 1,40,000, और ये बन गया 1,40,000। 1,40,000 में 60 निकालिए तो ये बन गया, देखो इस साल की डेप्रिसिएशन अपने आप आपके पास आ गई, 80,000 की प्रोविज़न आ गई। इस साल की प्रोविज़न आ गई 80,000, ये मिसिंग थी, ये पता लग गई। ऊपर देखिए